کے کردار کے حوالے سے اگر مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں یونیورسل میں کسی پر کتابیں لکھی گئی ہے تو میرے غوث اعظم کی شان ہے، میرے غوث اعظم پر لکھی گئی ہے۔ آپ صرف مین مشین سے آواز دیجئے گا، بیس کو زیرو کر دیجئے، کیونکہ ابھی تو میں درود بھی نہیں پڑھوایا ہوں، ابھی تو تقریر شروع ہی نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ سے کچھ عرض کروں، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسو پناہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو تقریر شروع کرے یا اسی پہ ختم کر دے؟ بولیے، تقریر کریں یا ختم کر دے؟ بولیں ذرا محبت سے کہہ دے، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ کون ہے غوث اعظم؟ میں جملے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے غوث اعظم خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے سبب آپ کو یہ مقام نصیب ہوا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے سبب یہ مقام حاصل ہوا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے بعد میرے مصطفیٰ کے خاندان ائمہ کو چھوڑ کر تمام ولیوں کے سردار تاج الاولیاء امام الاولیاء غوث اعظم ہے، یعنی صحابہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے خاندان کے ائمہ کو چھوڑ کر اگر اس خاکدان گدی پر اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ یوں ہی امام الاولیاء نہیں کہا گیا، یوں ہی سید الاولیاء نہیں کہا گیا۔ کون ہے غوث اعظم؟ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ انکا لعلی خلق عظیم کا نمونہ تھے، آپ انکا لعلی ہدی مستقیم کے مصداق تھے۔ کون ہے غوث اعظم؟ جب غریبوں میں بیٹھتے ان کو عنایت کرتے تھے، اگر کسی سے خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے تھے، کسی سے کوتاہی ہو جائے درگزر فرما دیا کرتے تھے، کسی سے ملاقات ہو جائے تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کون ہے غوث اعظم؟ کریم النفس کا نام غوث اعظم ہے، مستجاب الدعوات کا نام غوث اعظم ہے، کریم الاخلاق کا نام غوث اعظم ہے۔ ذرا محبت سے کہتے کیا غوث المدد، کیا غوث المدد؟ کون ہے غوث اعظم؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ ماں کے شکم میں رہ کر 17 پارے حفظ کرنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ مستجاب الدعوات کا نام غوث اعظم ہے۔ کون ہے غوث اعظم؟ 15 سال تک ہر روز قرآن ختم کرنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ دور طالب علمی میں صداقت کی بنیاد پر 60 ڈاکوؤں کو توبہ کرا کر اسلام میں داخل کرانے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ ذرا تو میرے مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند فضا میں لہرا کر اور کہتے کیا غوث المدد، یا غوث المدد۔ کون ہے غوث اعظم؟ 12 سال کی ٹوپی ہوئی کشتی کو نکالنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ اپنے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ ایام رضاعت میں رہ کر رمضان کے روزے رکھنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ کون ہے غوث اعظم؟ قرآن کی تفسیر کا نام غوث اعظم ہے، حدیث کے ایکسپلینیشن کا نام غوث اعظم ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے ارے صدیق کی صداقت کا نام غوث اعظم ہے، فاروق کی عدالت کا نام غوث اعظم ہے، عثمان کی سخاوت کا نام غوث اعظم ہے، مولا علی کی شجاعت کا نام غوث اعظم ہے، حسنین کے شہزادے کا نام غوث اعظم ہے۔ ارے مصطفیٰ کے تمام معجزوں میں ایک معجزے کا نام غوث اعظم ہے۔ مستقل
सुभान अल्लाह। कौन है गौसे आजम? मैं बीच बीच में ये मसला भी क्लियर कर दूंगा। बहुत लोग समझते हैं कि गौसे आजम जब इमामुल औलिया हुए तो गौसे आजम का मकाम मर्तबा मेरे पैगंबर कुल नबियों के बाद उनका मर्तबा है, मगर याद रखना नबियों के बाद नबूवत के बाद एक सहाबियत का दर्जा हुआ करता है। दुनिया का कोई भी विलायत के गौस की मंजिल पर पहुंच जाए, कुतुबियत के मंजिल पर पहुंच जाए, मगर सहाबियत के दर्जा को नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए कि सहाबियत का दर्जा मुजाहिदे से नहीं मिलाता है। ये सहाबियत का दर्जा इबादत से नहीं, रियासत से नहीं, रोजे से नहीं, नवाफिल से नहीं। खुदा ने नबूवत के बाद विलायत का दरवाजा खोल रखा है। कयामत तक वली पैदा होते रहेंगे, मगर कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि विलायत नवाफिल की कसरत से मिलती है। वली कोई बंदा मुजाहिदा करके इबादत करके बन सकता है, मगर याद रखना सहाबी इबादत से नहीं मिलती है। सहाबियत का दर्जा इबादत से नहीं, नवाफिल की कसरत से नहीं। अरे सहाबियत का दर्जा तो मुस्तफा जाने रहमत के दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सहाबियत का दर्जा मुस्तफा के दीदार से अब यहीं पे क्लियर हो गया कि कयामत तक जितने वली हुए या पहले हो चुके किसी भी सहाबी के वो बराबर नहीं हो सकता। अबू बकर के कोई बराबर वली नहीं हो सकता, उमर के बराबर कोई वली नहीं हो सकता, उस्मान के मुकाबिल में कोई नहीं हो सकता, मौला अली के मुकाबिल में नहीं हो सकता। इसलिए कि विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबूवत का दरवाजा खुदा ने बंद कर दिया। मेरे मुस्तफा को खातिमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा, मगर विलायत का दरवाजा आज भी खुला है। अगर कोई बंदे मोमिन, अगर कोई बंदे मोमिन इबादत करता रहे, मुजाहिदा करता रहे, कसरत से नवाफिल पढ़ता रहे, मेरा ईमान है वो भी खुदा का वली कामिल बंदा बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त है काफी, रात के है काफी हिस्सा गुजर चुका है, खत्म कर दे या और कुछ देर बोले? माइक ऑपरेटर मेन मशीन से आवाज दीजिए, हमको जोर न लगाना पड़े, क्योंकि रोज की आदत है कि नहीं? जनाब मकबूल साहब किबला तो ऐसे ही मकबूल है ना? तो विलायत का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। यह मसला क्लियर हो गया कि किसी भी सहाबी अदना सहाबी के बराबर भी कोई वली नहीं हो सकता, चाहे गौसे आजम हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे आला हजरत हो, चाहे मुजाहिद मिल्लत हो। जब ये मसला क्लियर हो गया तो ये भी मसला मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर ये बराबर किसी सहाबी के नहीं तो सुनो, मेरे मुस्तफा ने अपने शहजादे गौसे आजम को मकाम दिया है कि कयामत तक उनके जैसा कोई वली भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कोई उनके मुकाबिल में वली, वो मकामे कुतुबियत और गौस, ये विलायत का एक दर्जा होता, उस दर्जे पर मेरे गौस फाइज हो गए। ये मुस्तफा की जबान से गौसे आजम की शान सुनना चाहेंगे? जरा मोहब्बत से कह दे, या गौस अल मदद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हुजरे फातिमा में मुस्तफा है, पंजतन है, पंजतन 5 तन 5 जिस्म को मौला अली, फातिमतुज ज़हरा, हसन मुज्तबा, हुसैन मुर्तजा और मुस्तफा, इन 5 को पंजतन कहा जाता है। हुजरे फातिमा में पंजतन है, मुस्तफा है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, जब मेरे पैगंबर की नजर हसन मुज्तबा पर पड़ी तो हसन को प्यार करने लगे। कभी हसन के रुखसार को चूमते हैं, कभी हसन के लब को चूमते हैं, कभी हसन के पेशानी को चूमते हैं। अब हैरानी में इमाम हुसैन नाना के चेहरे को तक रहे हैं। आज क्या बात है, इस
इससे पहले जब नाना आते थे, पहले मुझे गोद में उठाते थे, पहले मेरे पेशानी को चूमा करते थे, मेरे रुखसार को चूमा करते थे, मेरे लब को चूमा करते थे। मगर आज बात क्या है, मेरे नाना की सारी तवज्जो मेरे बड़े भाई हसन की तरफ है। हजरत फातिमा कुछ अर्ज करती, इससे पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हे फातिमा, हे मेरी शहजादी, हे मेरी लाडली, तू हैरानी में है कि आज मैं अपने बड़े शहजादे हसन को क्यों प्यार कर रहा हूं। सुनो सुनो, अभी अभी सैयदुल मलाइका जिब्राइल आए थे और ये पैगाम दे करके गए कि मेरा बेटा, मेरा शहजादा हुसैन वो है जिनके नस्ल से ज़ैनुल आबिदीन हो गए, हुसैन वो है जिनके नस्ल से इमाम बाक़िर हो गए, हुसैन वो है जिनके नस्ल से इमाम जाफर हो गए, हुसैन वो है जिनके नस्ल से मुर्तज़ा कासिम हो गए, जिनके नस्ल से इमाम तकी हो गए, इमाम नकी हो गए, इमाम हुसैन वो है जिनके नस्ल से नकी अली रज़ा हो गए। मगर सुनो सुनो, ए मेरी बेटी फातिमा, ये जिब्राइल बता करके गए हैं, मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा शहजादा हसन वो है जिनकी नस्ल में एक शहजादा आएगा, जो शान मेरी अंबिया में है, उसकी शान औलिया में होगी, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह देना, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जहां आपको लगे कि खत्म होना चाहिए तो मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। याद रखिएगा, गौसे आजम 5वीं सदी हिजरी, 5वीं सदी हिजरी में आपकी विलादत बासआदत 570 या 470 या 71 ईस्वी में आपकी हिजरी में विलादत हुई। 500, 470 या 71 हिजरी में आपकी विलादत हुई, यानी 5वीं सदी में आपकी विलादत बासआदत हुई। मैं एक तारीख बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा की इस दुनिया में आने से पहले हजरत आदम आए, मुस्तफ़ा की विलादत की बशारत दिए, हजरत शीश आए, मुस्तफ़ा का पैगाम दिया, जितने भी पैगंबर आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत यूसुफ आए, सब ने कहा अल्लाह का आखिरी पैगंबर आने वाला है। बल्कि हजरत ईसा के जुमले को कुरान ने नकल भी कर लिया है कि एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, वो रसूल उसका नाम अहमद होगा। इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जुमले को कुरान में नकल कर लिया गया है। कहने का मकसद यह है कि मुस्तफ़ा के विलादत से पहले जितने भी अंबियाए कराम आए, सब ने मुस्तफ़ा की विलादत की बशारत दी। और जब उस मुस्तफ़ा के शहजादे को इस खाकदाने गिद्दी पर भेजना हुआ, इस खाकदाने गिद्दी पर जब उनका वजूद को बख्शना हुआ, तो मुस्तफ़ा के विलादत से पहले कमो पेश जितने भी पैगंबर आए, सब पैगंबर ने मुस्तफ़ा की विलादत की बशारत दी। और जब मेरे गौसे आजम को 5वीं सदी हिजरी में तशरीफ लाना हुआ, तो गौसे आजम के आने से पहले के जितने वली थे, सभी ने गौसे आजम की विलादत की बशारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और सुने, सैयद ताइफा जुनैद बगदादी जैसे वली, और वली ही नहीं बल्कि सीरत की किताबों में यह मज़कूर है कि हजरत गौसे आज़म की विलादत से पहले मुस्तफ़ा अपने सहाबा के झुरमुट में आपके अब्बू जान अबू साले मूसा जंगी दोस्त के पास आते हैं और बशारत देते हैं, हे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, सुनो, तुम्हारे घर में एक शहजादा आने वाला है, तुम्हारे घर में एक बेटा होने वाला है, खुदा तुम्हारे घर में ऐसा बेटा अता करने वाला है कि जो शान मेरी अंबिया में है, उसकी शान औलिया में होगी। तो ये बशारत पैगंबर ने दी है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत गौसे आज़म की विलादत की बशारत। तो सोचिए उस गौसे आज़म की शान और उनका मकाम क्या होगा। और बात आई तो अर्ज करता चलो, अभी मौलाना सफीउल्लाह साहब की बला
शब मेराज का मुख्तसर सा इन्होंने जिक्र किया था। शब मेराज समझते हैं? अरे सिर्फ सुनते हैं या समझते? नहीं समझते, एक जुमले में समझा दूंगा। शब मेराज ये वो रात है जिस रात मुस्तफा ने खुदा का दीदार किया, यही शब मेराज है। कायनात में जितनी किताबें, खुदा की 4 किताबें नाजिल हुई, किसी में यह नहीं लिखा है कि किसी ने खुदा को देखा हो। गवाही सबने दी खुदा है, मगर सब सुनकर हजरत आदम ने गवाही दी खुदा है, मगर ये गवाही समाई थी, सुनने से ताल्लुक हजरत आदम ने खुदा को देखा नहीं था। हजरत यूसुफ ने खुदा की गवाही दी खुदा है, मगर हजरत यूसुफ ने खुदा को देखा नहीं था। हजरत मूसा ने गवाही दी खुदा है, मगर हजरत मूसा ने खुदा के जलवे का हल्की सी झलक देखी थी, खुदा को देखा नहीं था। मतलब जितने पैगंबर आए, हर नबी ने खुदा की शहादत दी कि खुदा है, खुदा एक है। मगर पूछा जाए, ए अबुल बशर हजरत आदम, आपकी उम्मती को बता दीजिए क्या खुदा को आपने देखा है? जवाब मिलेगा नहीं। यूसुफ से पूछिए क्या खुदा को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं। मूसा कलीमुल्लाह से पूछिए खुदा को देखा है? कहा नहीं। जिस नबी से पूछिए खुदा को देखा है? नहीं। बगैर देखे गवाही दिया खुदा एक है। हम सभी उम्मती मुस्तफा से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए क्या खुदा को देखा है? तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरी उम्मती को, हर नबी ने खुदा की गवाही दी है। वो गवाही समाई थी, खुदा को देखा नहीं था, सुनकर गवाही दी थी। मगर तेरा पैगंबर मुस्तफा सुनकर नहीं, खुदा को देखकर गवाही दे रहा है। अब जरा सोचो, जिस नबी ने खुदा को देखा और देखकर गवाही दी, उसी नबी की बेटी चमन जहरा के फूल का नाम गौसे आजम है। कौन है गौसे आजम? जब शबे मेराज, मैं मेराज की बात कर रहा था, हजरत ने फरमाया जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा गर्म। कहाँ गए थे मुस्तफा? खुदा से मिलने के लिए। जब खुदा से मिलने के लिए गए, अर्श के पास पहुंचे, अर्श को मेरे पैगंबर ने बुलंद पाया। अर्श बुलंद है, ख्याल फरमाया, रब ने फरमाया मेरे महबूब अर्श पर चढ़ जाइए। आपने ख्याल फरमाया बहुत बुलंद है। एक खूबसूरत नौजवान हाजिर हुआ और आपके अदब के मुनासिब हो अताब बजा लाया। आपने अर्ज किया अपना कदमे नाज को मेरी गर्दन पे रख दीजिए। अभी मैं बताने वाला हूँ कौन शख्सियत है। जब मेरे पैगंबर ने अर्श पर चढ़ना चाहा तो वो नौजवान, खूबसूरत नौजवान ने कहा अपने कदमे नाज को मेरी गर्दन पर रख दीजिए। मेरे पैगंबर ने उनकी गर्दन पर अपने कदमे नाज को रखा। वो शख्स बुलंद होने लगा, हत्ता के अर्श तक चले गए। फिर वो नौजवान, खूबसूरत नौजवान मुस्तफा की बारगाह में यूं हाथ बांध करके खड़ा हो गया। जरा मोहब्बत से कहते या गौस अल मदाद, या गौस अल मदाद। जानना चाहते हो कौन सी शख्सियत है? अरे बोलिए, जानना चाहते हैं कौन वो शख्सियत है? आपने कहा कदमे नाज को मेरी गर्दन पर रखे। मुस्तफा ने कदमे नाज को आपके गर्दन पर रख दिया। इसके बाद जब अर्श पे पहुंच गए तो वो आपके सामने हाथ बांध करके खड़ा हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने ख्याल फरमाया इस नौजवान का मर्तबा कहीं मकामे विलायत से और वो वाला होगा तो खुदा की तरफ से निदा आई, ए मेरे महबूब ये आपका शहजादा है। जब मलीदों की कसरत होगी, अहले पिता की कसरत होगी, जब दिन मिटने वाला होगा तो क्या आपका शहजादा आएगा, आपके तीने मतीन को जिंदा करेगा। इतना सुनना था मेरे पैगंबर ने उस नौजवान को बशारत दी, उस नौजवान को दुआएं दी और इरशाद फरमाया ए मेरी आंखों के नूर, ए मेरी अहले बैत के
चराग, ए मेरी अहले बैत के चराग, अरे सुनो सुनो, आज शब मेराज के मौके पर जैसे तेरा, आज जैसे मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, आज के बाद तेरा कदम दुनिया के सब वलियों के गर्दन पर होगा। वो गौसे आजम की जात है। और सुने, तारीख ये भी बताती है कि मुस्तफ़ा के दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत का निशान और गौसे आज़म के दोनों कांधों के दरमियान कदम मुस्तफ़ा का निशान था। गौसे आज़म की क्या शान है कि आपकी रूहानी तौर पर जलवागरी हुई और आपको मकाम ये हासिल हुआ कि अपने कंधे पर मेरे मुस्तफ़ा को सवार किया। इससे बड़ी और शान क्या हो सकती है? आप बाद के वली या पहले के वली, हर एक ने गौसे आजम के इस जुमले कदमी हादही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह का एतराफ किया। सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी हजरत गौसे आजम के जमाने से पहले का है। आप जुमा के दरमियान खुतबा पढ़ रहे थे, दौरान खुतबा सडनली आपने अचानक कह दिया, मेरी गर्दन पर भी, मेरे सर पर भी। जब आपने खुतबे जुम्मा खत्म किया, मिंबर के नीचे, मिंबर के सीढ़ी से जब नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद जब आपने नमाज़े जुमा पढ़ाई, नमाज़े जुमा पढ़ाने के बाद, नमाज़े जुमा से फरागत के बाद लोगों ने पूछा, आपने दौराने खुतबा या अचानक ऐसे कलेमात क्यों फरमाया है? आखिर कहने की क्या वजह है कि मेरी गर्दन पर भी, मेरे सर पर भी? ये बात मुझे समझ ना आई। तो आपने कहा, आलम गैब से ये मुझे मालूम हुआ है कि 5वीं सदी हिजरी में मुस्तफा के खानदान से, मुस्तफा के अहले बैत से एक कुतुब पैदा होगा, शहर की लान में पैदा होगा। उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसका टाइटल मोहिउद्दीन होगा, उसका टाइटल, उसका खिताब मोहिउद्दीन होगा। और सुनो सुनो, वो कहते हैं कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि खुदा की तरफ से ये आवाज आई है कि जुनैद, अरे तुमने गर्दन झुकाने से गौसे आज़म के लिए क्यों तवाकुफ कर दिया? आवाज आई, वो आवाज आती है कि 5वीं सदी हिजरी में उसका नाम कुतुब पैदा होगा, शहर की लान में होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, टाइटल्स मोहिउद्दीन होगा। और उसकी शान औलिया में ऐसी होगी जैसे मुस्तफा की शान अंबिया में है। जब इतना कहना था, खुदा ने फरमाया, है जुनैद, तुमने तवक्कुफ क्यों किया? तुमने गौसे आज़म के लिए अपने गर्दनें क्यों नहीं झुकाई? इतना कहना था। जुनैद ने यह ख्याल फरमाया था, ये सोचा था, मैं तो गौसे आज़म के जमाने में नहीं, और ये उनके लिए है कदमी हादही अल्लाह रकबते कुल्ली पली किल्ला। जब मैं गौस के जमाने में नहीं, अपनी गर्दन क्यों झुकाऊं, अपना सर क्यों झुकाऊं? तो खुदा की तरफ से हुक्म हुआ, अरे सुनो, अब्दुल कादिर कोई आम नहीं, मुस्तफा का शहजादा है, मुस्तफा का महबूब है, और मेरा महबूब है। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी ने कहा, मेरा भी सर, मेरी भी गर्दन पर उनके जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अभी गौसे आज़म की जलवागरी नहीं हुई है, मगर आलम अरवाह से ये खुदा की तरफ से हुक्म हुआ, कदमी हादही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। दुनिया के तमाम वलियों ने अपनी गर्दनें और अपने सर झुका लिए। मैं और की नाम क्या बताऊं? मैं एक शख्सियत का नाम बताऊंगा तो आप जान जाएंगे। सुना होगा, सुल्तानुल हिंद अताए मुस्तफा ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना होगा। जब हुक्म हुआ तमाम औलिया को खुदा की तरफ से और मुस्तफा की तरफ से, है मेरे शहजादे, ये ऐलान कर दो कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर, शर्क से लेकर गर्द तक जितने भी औलिया थे, सबने सर झुकाया और अपनी गर्दनें झुका ली। तारीख कहती है, ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ के गार में मुजाहिदा कर रहे थे। जैसे ही गौसे आज़म की ये पुकार सुनी थी, आवाज सुनी थी, फौरन कहा, बलाला राशि, ए मेरे गौसे आज़म, आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं,
बल्कि मेरे सर पर भी है, आपका कदम मेरी आंखों कबर भी है। तो खुदा ने गौसे आजम को आगाह कर दिया है, आगाह कर दिया कि अब्दुल कादिर, अरे गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन सारे औलिया में सर झुकाने में सब कतले गया, और उसका सिला ये मिला कि सबसे पहले सारे बलियों में गौसे आजम के इस जुमले पर जब गरीब नवाज ने अपना सर झुकाया, इतना झुकाया कि आपका सर अनवर जमीन से लग गया, तो मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया पूरे भरे मजमा औलियाए कराम के मजमे में, हे लोगों, गयासुद्दीन का बेटा तुम सब पर सबकत ले गया, सबसे पहले अपना सर झुका लिया, इसके बदले में अब गरीब नवाज को हिंदुस्तान की हुकूमत अदा कर दी जाएगी। अब मैं तकरीर के इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ, अगर चाहें तो 2-4 मिनट और बोल दे, जरा मोहब्बत से कह दे या ख्वाजा गरीब नवाज। जब गरीब नवाज की बारी आई, बात जब आ गई, ये गरीब नवाज मुस्तफ़ा का इंतखाब है, ये गरीब नवाज मेरे गौसे आजम की अता है, मेरे गौसे आजम की जिस पे नजर पड़ जाए। अभी आपने सुना था हाफिज शायर इस्लाम हाफिज और कारी शकील साहब ने कहा कि चोर पे अगर नजर पड़ जाए तो चोर भी वली हो जाया करता है। मेरे गौसे आजम की वो शान है, अगर चोर और डाकू पर नजर पड़ जाए वली हो जाए, अगर मुत्तकी और परहेजगार पे नजर पड़ जाए तो उसका आलम क्या होगा, वो तो किसी जमाने का कुतुब होगा, वो तो बड़ा मकाम विलायत के मकाम मर्तबा पर फाइज होगा। तो ये मेरे गरीब नवाज को विलायत मिली और ये हिंदुस्तान की बादशाहत और हुकूमत मिली। कैसी हुकूमत मिली आप ये देखते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, आज भारत में कोई भी पीएम बनता है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, मगर सुने मेरे गरीब नवाज को गौसे आजम ने और रूहानी हुकूमत अता की है कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी पीएम बनता हो, अरे पीएम बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे जिस मजहब, जिस रिलीजन, जिस कास्ट से ताल्लुक रखता हो, सबसे पहले हिंदुस्तान के राजा भारत के अजमेर की धरती पर उस पीएम को गरीब नवाज के सर पर उसको सर झुकाना पड़ता है, उनके दर पर अपने सर को झुकाना पड़ता है। कोई भी सीएम बने, पीएम बने, गरीब नवाज के दर पर अपना सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि असले जब अंग्रेज से किसी ने पूछा, अंग्रेज से कि हिंदुस्तान की हुकूमत के हवाले से, उसने एक जुमला कहा था, हुकूमत बहुत लोग करते हैं और वो लिमिट होती है 5 साल, खत्म। मगर वो अंग्रेज कहता है अगर कोई हकीकत में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हाकिम है तो गरीब नवाज है, जो सदियों से आज हुकूमत कर रहे हैं, सदियों से हुकूमत कर रहे, वो मेरे गरीब नवाज है। तो ये गरीब नवाज गौसे आजम की अता है। और मैं बता दूं, इन 900 साल के अंदर बहुत सारे औलिया है, सैयदना बायजीद बुस्तामी जैसी शख्सियत, जुनैद बगदादी जैसी शख्सियत, तारीख उठाकर देखे, इमाम जलालुद्दीन रूमी जैसे, जिन्हें शरीयत और तरीकत का संगम माना जाता है, जितने भी वली आए, मगर सभी का चर्चा होता है। मगर क्या बात है कि 11वीं शरीफ के मौके पर हर साल बड़े ही एहतमाम के साथ गौसे आजम की कॉन्फ्रेंस हम जश्न मनाया करते हैं। क्या वजह है, आज 900 साल बीत जाने के बाद भी उसी शान और शौकत के साथ हम गौसे आजम के महफिल मनाया करते हैं, क्योंकि खुदा ने और मुस्तफा ने गौसे आजम के मकामों मर्तबा को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, अजी कयामत तक कोई भी वली बनेगा, कयामत तक किसी बादशाह को बादशाह, किसी वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि पीराने पीर मेरे गौसे आजम के मोहरे तस्दीक न लग जाए, जब तक मेरा गौस मोहर न लगा दे, दुनिया का कोई इंसान वली नहीं बन सकता है। ये पावर अता किया है। जब 360 एक वली की विलायत छीन ली गई,
360 औलियाए कराम ने दुआएं की, खुदा इसे विलायत वापस दी जाए, मगर लोहे महफूज में देखा ये इनका नाम शकी और बदबख्त में लिखा जा चुका है। सभी औलियाए कराम ने कहा अब आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको सफलता नहीं मिल सकती, आपको कामयाब नहीं मिल सकती, इसलिए कि लोहे महफूज में शकी और बदबख्त में नाम आ चुका है। अब वो गौसे समदानी, महबूब सुभानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाते हैं, अरीजा पेश करते हैं, खुदा की बारगाह में दुआ करते मुझे विलायत वापस मिल जाए। गौसे आजम ने खुदा की बारगाह में फरियाद किया है और रब की तरफ से आवाज आती है, ए मेरे महबूब, ए मेरे अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें नहीं पता 360 औलियाए कराम ने इनकी विलायत की वापस के लिए की है, मगर हर एक ने देखा लोहे महफूज में शकी और बदबख्त लिखा आ चुका, इससे विलायत नहीं मिल सकती, विलायत छीन ली गई है। तो गौसे आजम अब्दुल कादिर ने कहा, हे मेरे मौला तू कादिर मुतलक है, हे मेरे मौला अगर तुम मरबूत बनाना चाहता है तो मकबूल भी बनाना चाहता है, मकबूल बनाना चाहता है तो मरबूत भी बनाना चाहता है। ये बारेला तेरी कुदरत में अगर तू चाहे तो वली बना सकता है, इसकी विलायत वापस दी सकती है। तो रब की तरफ से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर मैंने इस बंदे को तेरे हवाले कर दिया, अरे जो तेरी बारगाह का मकबूल है वो मेरी बारगाह का मकबूल है। गौसे आजम ने उसके सर पर विलायत का ताज सजा करके उसे वली कामिल बना दिया। तो अरे आला हजरत के मैं तो शेर व शायरी नहीं करता हूं, और क्यों करूं, जो फन है उस पे रहिए, है कि नहीं, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। मगर वो शेर क्या हजरत, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें हैं वो तलवा तेरा। हे गौसे आजम, अरे आपकी तलवे की ये शान है कि बड़े बड़े औलिया अपनी आंखों को आपके तलवों से मस करते हैं, अपने लबों को आपके तलवों से लगाते हैं, आपके तलवों को चुमा करते हैं, आपका कदमे नाज अपनी गर्दन पे रखा करते हैं। अरे जब गौसे आजम के तलवे का ये आलम है तो गौसे आजम के सरे अनवर का आलम क्या होगा। इसी को आला हजरत ने सिमट कर शेर में कह दिया, समझ गए। ये मेरे गौसे आजम की शान है, आपका ये आफ्ताबे वलायत खुदा ने कयामत तक बुलंद कर दिया। और जो भी बगदाद शरीफ जाए, कोई भी वली हो, और बगदाद जाकर गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी ना दे, उसकी विलायत सल्ब कर ली जाती है, उसकी विलायत छीन ली जाती है। हर वली के गर्दन पर मेरे गौसे आजम का कदम है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक मर्तबा आप लोग मोहब्बत के साथ। जरा मोहब्बत से कह दे, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आपके आफ्ताबे विलायत को इतना बुलंद कर दिया कि क़यामत तक अब वो किरणें बिखेर रहा है। जो फैज़ान गौसे आज़म की ज़ाहिरी हयात से लोगों को मिलता था, वो हयात बरज़खी से भी गौसे आज़म का फैज़ान जारी व सारी है और क़यामत तक मिलता रहेगा। मेरे गौसे आज़म का कदम, मैं यूँ सीधा कह दूँ कि अगर कोई वली ये इनकार कर दे कि मेरी गर्दन पर गौसे पाक का कदम नहीं, तो वली नहीं है। कोई भी इनकार कर दे, वक्त का कुतुब हो, गौस हो, अगर इनकार कर दे हज़रत सुलेमान तोशी रहमतुल्लाह अलैह जय्यद वली कामिल,
आपके मुरीदीन ने अर्ज की कि मेरे सुलेमान तोशी इतने बुलंद पाया और मकाम के हामिल है कि उनकी गर्दन पर गौसे पाक का कदम नहीं है। जब ये बात सुलेमान तोशी की बारगाह में पहुंची तो आपने कहा, नादानो, तुम मेरे मुरीद हो, तुम मुझे अपना पीर मानते हो, मगर सुनो, अरे जिसके गर्दन पर गौसे पाक का कदम नहीं, वली नहीं है। अगर मुझे वली मानते हो तो मेरी गर्दन पर गौसे पाक का कदम मानो, मेरी गर्दन पर गौसे पाक का कदम मानो। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, वक्त नहीं है तो मैं ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करूं, एक तफसील गुफ्तगू कर सकूं, मगर जो मुझे हुक्म मिला है थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा। अभी जनरेटर के से ये बात आई